बात है, अनुपम सर ने भी अपनी बेस्ट विशेस यहाँ पे भिजाई हैं इस पूरी टीम के लिए। और अब मैं इस बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार कास्ट को यहाँ बुलाना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा निवेदिता भट्टाचार्य जी से। गिव इट अप फॉर द वेरी वेरी गॉर्जियस लेडी लेडी। ऑफ कोर्स उनको हमने देखा लास्ट ईयर, बड़ा सारा प्यार दिया एंड एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर में शी प्लेड द लीड। सप्तमी गौड़ा हमारे साथ है। इट्स सच अ प्लेजर दैट शी इज हियर विद अस। जोरदार तालियां, कम ऑन वी कैन मेक सम मोर नॉइज। गिरिजा ओ गोडबोले जी हमारे साथ। वाओ वाओ वाओ, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव्ड हिम, तब से लेके अब तक और आगे भी प्यार करते रहेंगे। एज आई सेड, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा जोश है। गिव इट अप फॉर मोहन कपूर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। मयूक जी हमारे साथ यहाँ पे है। व्हाट अगेन, जोरदार तालियां फॉर मयूक। एंड अरविंद पासवान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Presenting this superstar cast and of course the Kamal ka crew of this amazing film, The Vaccine War, releasing on the 28th of September. एक quick photo up हो जाए। और इससे पहले कि we do that, of course हमारे distributor साहब, जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरी इंडस्ट्री इनको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, बड़ी बड़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ कोर्स द वैक्सीन वॉर इज वन ऑफ देम। डॉक्टर जयंती लाल गड़ा साहब के लिए जोरदार तालियां पेन मरुदर से। द एवर सो कूल। Vaccine war gonna change the course of my life. At the same time, it's gonna change the course of Indian cinema, right? Yeah. For you. I had a great time. मेरे पूरे बाल शेव हो गए थे। आप बीती सी हो गई सर ये तो। और mainly मुझे बहुत मजा आया नाना सर के साथ काम करके, सबके साथ काम करके। And it's gonna be an amazing film. Thank you so much, sir. मैं विवेक जी के साथ बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया है मैं अवेलेबल नहीं था, पर इस फिल्म के लिए मैं था। एंड जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैंने कहा रॉन्ग कास्टिंग ब्रो, हाउ कैन आई प्ले दिस कैरेक्टर। तो ही सिंग फिक्र मत करो, तुम आ जाओ। अच्छा बस यू कॉल्ड मी एंड आई एम देयर। एंड ये ट्रेलर एक्चुअली, मैं सच बता रहा हूँ विवेक, दिस वंस फॉर यू। आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई हैव टू से 30 years and counting I've been in this industry, I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow. I really am. So thank you Vivek, thank you Pallavi, thank you everyone. Thank you Kapoor साहब for sharing that. Ma'am, for you, how was it? How was the journey? And थोड़ा सा बताएं. It was incredible. It's too many firsts for me. My first time working with Nana, my first time working with Vivek sir also. I have known all of these people for a very, very long time, just never had the opportunity. And apart from being an incredible experience of the shoot itself, of the process of it, I feel the cast and crew is also so lovely to work with. We made such great friends and it was so lovely. It was such a warm, happy atmosphere to work in that it made the whole experience all the more special. And I would also agree with Mohan and Pallavi ji, as she said, we're all extremely proud of what we have made. Yes. And there was a sense of pride even when we were doing this. So as we were shooting it, as we kept getting, getting to know more and more about what has actually happened, we were just filled with a sense of pride for our country and for all the lovely work that has been done by Dr. Bhargava and his team. And I am extremely proud to be playing Dr. Nivedita Gupta, whom I have also met personally. And it's just been an amazing, amazing journey. We are extremely proud of this team, this amazing team. Thank you so much for sharing that. Saptami, this one's for you. Tell me. Yes. Mike. She studied bioscience, so she was the only one who knew what we were talking about. And every time we made mistakes in our medical terminology, she was the one who was correcting us on the sets. Right. Thank you so much, ma'am. वो ऐड करने के लिए Saptami, हिंदी debut, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, firstly, sabko namaskar, yelrigu namaskara. And I'd firstly like to thank Vivek sir for giving me this opportunity. And then, for me, of course, the language was difficult. Yeah. And it was a very different language, new language. It's not that I don't know Hindi, but again, sync sound is an issue for me. So
Vivek sir gave me that, you know, confidence, and he said, no, it's okay, you can take your dialogues. And I have a very South Indian Hindi accent. So he said, no, I want that for the character, it will suit very well. So there was, I mean, he gave me a lot of confidence. It was so easy working with everybody. I mean, I keep getting asked everywhere, you know, how it was working down south and working here. You know, how is the, you know, Bollywood or Hindi cinema, what's the difference? It didn't really, you know, it didn't seem like a difference. I think that's because of the team that I worked with. We all ate together, we practiced our lines together, we used to get ready together. So I think that made it very easy for us, and also thanks to Uday, I mean, our cinematographer, because I worked with him and it was wonderful working with him, and Pallavi Joshi ma'am. I mean, I didn't get the opportunity to work with Nana sir, and hopefully sometime in the future. But yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am, everybody was so nice working, and I'm very happy and grateful for this. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, this one's for you. Every time we see you on that big screen, या जैसे भी जब भी हम आपको देखते हैं वो सब एकदम बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है. यहाँ पे एक बड़ा अलग सा रोल है, अलग किरदार है. What do you have to say on that? नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले जब ये कहानी बस मुझे फ़ोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं, और विवेक जी के साथ बहुत बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में. एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट पल्लवी एंड विवेक जी एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं, और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम्हें स्क्रिप्ट. आई सेड आई एम डूइंग इट बिकॉज ही इज कॉल्ड मी. सो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट इटसेल्फ. एंड जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई, और जैसा इन सब ने कहा है, मैं उससे 1% भी पीछे नहीं हूँ. I am so proud to be a part of this film. I'm playing Dr. Pragya, जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है. डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे. I've played her. बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई, इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माय गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने, इतनी स्ट्रगल करके. मतलब they've just done everything. एंड छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दिक्कतें आई हैं, और उसके बावजूद इतने शॉर्ट स्पैन में वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट. सो हम तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना निमित्त मात्र. हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है बहुत ही, इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रूप में दिखाया. उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक यू विवेक एंड पल्लवी, एंड इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव वर्कड विथ नाना सर. आई thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni was, so we were there throughout. We had a wonderful time, and all good things only. Guys, just watch the film. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure वो जो सच में ये कर रहे थे वो रियल लाइफ हीरोज जो हैं, they'll be proud of this team. वो उनको बड़ा फख्र होगा आप सब के ऊपर. One of my favorite people in the industry. I'll come to you before we take मीडिया से सवाल. डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताएं आपकी कोलैबोरेशन विवेक सर के साथ, पल्लवी जी के साथ, इस पूरी टीम के साथ. थैंक यू. विवेक जी के साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी, ताशकंद फाइल से जुड़े थे, और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा. पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमेन एम्पावर को, तो बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई. नाना जी के साथ भी काम, बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है. थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद सर. Thank you so much. And now can we quickly have the chairs so that we can take the questions. हमारे जो मीडिया से फ्रेंड्स हैं उन सब से. And I also want to specially mention some brilliant people who were behind the camera. I would just like to take their names. इस फिल्म का एक कैरेक्टर जो आपने सुना होगा एंड में, इसका म्यूज़िक है जिसकी सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं. अक्सर इस तरह की फिल्मों में हम लोग वेस्टर्न स्टाइल म्यूज़िक करते हैं, पर इस बार हमने राग बेस्ड म्यूज़िक किया. पूरी फिल्म में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को यूज़ किया है, और उसको किया है रोहित शर्मा ने, वेरी टैलेंटेड जीनियस म्यूज़िक डायरेक्टर. जो गाना नसादी सूट जो बजा था वहाँ टाइम स्क्वायर में, वो स्वप्निल बांडोडकर ने किया है उसका वर्जन.
और उदय सिंह मोहिते इसके डीओपी हैं, गिरीश रामटेक, यानी इनका दूसरा टेक नहीं होता है साउंड का। तो ये बस ये कह रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कहीं नाना की कोई लाइन का टेक ना निकल आए। तो सच्ची रोज बोलता था कि कहीं नाना की लाइन का कोई डबिंग ना निकल आए, कहता तो बिकॉज नाना इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट साउंड एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तृप्ति इज़ हियर हु हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल, एंड राव देवेंद्र, विभू, अत्तर सिंह सैनी जी, अवर हाँ, एंड मनन, yeah, he's there. Thank you so much, sir. Thank you so much. And yes, of course, we'll have that big, nice photo up in. अरे भाई हुआ नहीं स्टार्ट। Yes. It really looks great. Congratulations on that, and obviously it's already received such a great response. My question is for Vivek sir. Vivek sir, I'm right at the center. Yeah, hi, thank you. My question is, sir, because it's such a tricky subject. Everybody knows the kind of stuff went into it in real life, and I'm sure you must have faced a lot also during the research time. There has been reports and there has been stuff that figures like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and so many other journalists were apparently working against the whole thing and all that. Is that being a part of this film as well? Are there those darker aspects also being shown in the film? यार ऐसे सवाल मत पूछा करो। हाँ वही सर, the vaccine war. मैं कोई भी शब्द पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. Just one thing, sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes, the real life heroes. So अगर हम उससे ही related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. Sir, we'll give you the mic. Don't worry, sir. मैं mic लेके आता हूँ. हेलो सर, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सबने अलग अलग पहलू दिखाए। समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत। जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई। क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई। जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है
कि हम लोग इस तरह की कहानियाँ तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस। 1 सेकंड। वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately problem क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, ख़त्म हो जाती है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं। ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली। वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड। जी सर, एक सवाल और रहेगा। फिलहाल में एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर पे भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूँकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? हमारे पहले मैं कुछ बोलूँगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको पूछ रहा हूँ, तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले बढ़े। मैं बोल रहा हूँ पल्ले बढ़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Sir, Pallavi ma'am. Hi, Santa. I am from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए। जब भी बात पिछले 9 महीने से, सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेज या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज़ गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज़ में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला। दैट्स व्हाई वी हैव टू, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से। हेलो पल्लवी जी, टू योर लेफ्ट।
Hi, this is Russell De Silva from PTI. Your थोड़ा character. जोर से बोलना. This is Russell De Silva from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would really, very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character, and what were the inspirations you took from the real life person to do the role. So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her, and if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to get the entire team to make this vaccine I won't get into scientific terminologies now because now I know them, but whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on, her scientists. So it started becoming, it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it, all the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent in Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English. And that's when I understood that Hindi में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit. And now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. So I guess that turned out to be a good coincidence. But a very amazing woman. I saw all her interviews, and believe you me, whatever you see on screen is Dito Priya Abraham. I've picked up all her real mannerisms because I saw a character in her, and I loved playing her. And I think she's a wonderful, wonderful person. And as you say, Bharat, वो screen पे ना वो वहाँ पे झलक भी रहा है और बिल्कुल emotion आ रहा है. Sorry to interrupt, but may I just say something? Pallavi and me, we worked long back, and there was this one scene where we were all in this frame together, and I didn't have dialogue, so I was watching her rehearse with my other co-actors. And I looked at Pallavi and I said, "Why is she talking so funny?" So I asked her at one point. I said, "What is wrong with you? Have you been bitten on the tongue or something? Why are you talking the way you are?" She's saying, "How am I talking?" I said, "Your pronunciation is not right." Then she told me, she's saying, "Because my character is Malayali." I said, "Oh God." So it was so fine. Her performance was so fine. I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think ma'am has to leave, right, Girijaji? Yeah. So she has to leave. So thank you so much for being here. And a big round of applause for this amazing, amazing actor, ladies and gentlemen, please. Thank you so much. Hi. Yeah. Hi, Mayurya from Beyond Bollywood. I have one simple question for Pallavi ji and one for Vivek sir. Pallavi ji, obviously looking at, if you can see me, Mayurya in the center. So obviously after Tashkent Files, the Kashmir Files, and how pleased are you that in this film you're not playing the cynic, and as Mr. Vivek often says, the urban Naxal? Well, I'm glad Vivek didn't give me Raima's character in this. No, for a change, I'm playing a very positive role in this film. I chose to play those 2 characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie. And I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking
And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around to still create that energy. So Tashkent was something that I had kind of begged for, because Vivek at that point in time was considering casting Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman, and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it Vivek? Because you had that role in your mind when you wrote That was a script. good audition. Vivek, my question to you is, looking at Raima's character is in a film which is based on a true story. Is her character a work of fiction, or are there inspirations over there as well? See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents. That's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story, because this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and the toolkit shot. That is the real paper. I have just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined that. Hello, here. Hello, Shilpa here from Mayapuri magazine. विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह जैसी फिल्में आप बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हो, अब ये द वैक्सीन वॉर हो, एक इंडियन सिनेमा को अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं, इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपका मोटिव मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए. मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी. और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स. यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी, और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल. आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी. बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये. वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. हमारी जितनी फिल्में थी, अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इवल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था, जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इवल को सामने ला के उसको रखता था. धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया. आई हैव डन नथिंग न्यू. मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है. फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें. वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है. अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर, ऑस्कर विनिंग. तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है. हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी, सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना.
गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है, हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नज़र से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है। तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे तब तक आम आदमी जो है, आम यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री? दैट्स ऑल आई एम डूइंग। Dr. Bhargav, this is Rajiv Vijayakar here. I just wanted to know, see, when you thought about all this, the vaccine and all that, what were your inspirations and how did the social and political setup help you or, inspire you or pressurize you in any way? I think there was no pressure really, and what I mean in a positive sense. But the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the leadership, from the government, which was phenomenally there, as well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to gowns to oxygen to masks, and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because it was an all of government approach for a lot of things. So everyone was working together, and that really was a team, and as you know that together everyone achieves more. That is the full form of a team. So that's what we were able to do. So vaccine, generally it is said that vaccine takes a certain X number of months or years to be developed. So, but you did it so quickly. So, can you tell us what is the reason and how did that was achieved? So the demand was there, and work was being done on a war footing. Initially there was a restriction and lockdown, so we were working day and night during the lockdown. All the experiments, whether it be on rats or hamsters or mice or on monkeys, they were all being fast-tracked and done very fast. And then when we were successful with the monkeys, we were able to go to the human phase 1, phase 2 and phase 3 trials. विवेक जी, hello. Actually, अभी अमेरिका में ना lot of people, lot of scientists from CDC and other organizations, Baylor and all, one of the top institutes in the world, they came to see films और उनके interviews भी हमारे पास. Everybody says it is impossible how you did it, how India did it. Nobody believes it. Even the top scientists can't believe how we work. But that's the advantage of being an Indian कि हम लोग जब crisis होती है तो we go out of our way to achieve things. विवेक जी, नाना सर, सिमरन सिंह, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. द फिल्म का ट्रेलर जो बहुत ही धमाके, मतलब एक बहुत ही मूविंग है. इट्स इमोशनली एंड इट्स अ सेलिब्रेशन एक तरफ से देखा जाए तो. मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि नाना सर की एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते हैं तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा करते थे कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं थे, वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते हैं. तो ऐसा कुछ सीन आपने कुछ देखा था इस शूट के दौरान? ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे. पहले जवाब वो दे, फिर मैं उसके ऊपर मेरा. ठीक है सर, बता दे कुछ. नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ. He doesn't do much. ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया, डायलॉग. He never, not even once. एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज. But he'll just come and add one thing. वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है. Not only for him, but everybody who's in that scene. So that way नाना के बहुत सारे छोटे इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है. दीज आर सीरियस मोमेंट्स, पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की. बिकॉज आई रियलाइज कि इन ऑल द 12 स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ्स. इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी. So he adds things which become very sometimes humorous, sometimes intense. But Nana is an asset. अब मैं नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ. जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चाहिए. एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team, जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट
ने मुझसे कहा था, अरे रे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम्ब है, और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम्ब ऑडियंस की क्रिएट की है। अगर आप चैलेंज, और ये बात हमने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम से, ताशकंद फाइल से, कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इसमें 50 कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती हैं मेरी हर फिल्म के अंदर। हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद, कोई गाने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई हीरोइंस नहीं। एक बंद कमरे में 8-10 लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है, सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है। तो आप अगर आप सुर में, ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड, और होना क्या चाहिए फिल्मों में। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई है, अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो फिल्म इंटेलिजेंट है और कौन सी डम्ब है, ये आपको डिसाइड करना। नहीं, मैं सच कहता हूँ, वेलकम करते हुए और ये करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है। यहाँ तो सब कन्विंसिंग है, वहाँ कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, तो उधर ज़्यादा जान डालनी पड़ती है। समझ में आया ना? जी जी। और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है, हम किस तरह के एक्टर हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? ये तो बड़ा आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है। करने वाले हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर। बैठ जाए। धन्यवाद, बैठ जाओ। ऑडियो ऑडियो मोठे नहीं बोल, मोठे नहीं बोल। from Indian Express. Nana sir, the question is for you. आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 years के बाद देख रहे हैं. The vaccine war is like a comeback to Hindi films. Has the industry opened up to you now, and what kind of films will you be doing, sir? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी। And welcomes अभी एक announce हुई है, and you're not जिसमें part of हम it. नहीं कर रहे। Yeah. So why is it? What is going on? उनको लगता है कि हम पुराने हो गए, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अभी हम पुराने नहीं हुए, इसलिए इन्होंने नहीं लिया। इतना सिंपल है। और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उतनी ही जान। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है, तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें, बस बाकी कुछ नहीं। हर एक को काम मिलता है, सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है। नाना जी, हाँ आपके लिए सवाल है। हाँ, ट्रेलर से आपका सशक्त नेतृत्व दिख रहा है महिलाओं के प्रति, जो आपने प्रेरित कर रहे हैं उनको। वैसे तो सशक्त हैं सब आर्टिस्ट, तो आपके एनकरेजमेंट से कैसा काम हुआ इन लोग का, बताना चाहेंगे? क्या क्या क्या? आपके नेतृत्व में महिलाओं को आपने एनकरेज किया, प्रेरित किया, ट्रेलर से ऐसा दिख रहा है। हाँ। तो आपके इस नेतृत्व में इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमने सीखा बहुत उनसे। क्या होता है, मैं आज सजो लूं, हम मर्द बहुत इंफीरियर होते हैं, इसलिए हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है औरत क्या पीछे क्या कर रही है, इसलिए हम डोमिनेट, हम इंफीरियर है, हमारी औकात कम है, हम जानते हैं, and that is the reason. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. I know we've had a wonderful question answer session, and अभी के लिए इतना ही है। एक बार जोरदार तालियां for this team and for all you wonderful people for asking such insightful questions. Thank you so much. Thank you so much, sir. ये खाली बस। One person we forgot to acknowledge when we introduced our crew to you. Shank Rajatyakshi is here. He's our editor. वो इस तरफ नहीं बैठे थे, इसलिए वो रह गया था। शंख एंड टीम, प्रियंका एंड टीम, राम एंड टीम, एवरीबडी, यानी सब लोग अपने ही हैं, और जो बहुत क्लोज होते भूल जाते हैं। सो थँक यू एवरीबडी। थँक यू। एक आपसे सगळ्यांना नाही तुम्हाला उत्तर देता आली, सबके साथ बात नहीं कर पाए, उतना वक्त भी नहीं था। एक ही एक ऐसे कोई सवाल
सामने करता है तो वो एक लिंक लग जाती है। तो वैसे भी हम पहले किसी का सुनते नहीं थे, आजकल कम सुनते हैं, तो इसकी वजह से पहले तो वो प्रॉब्लम है। तो आमने सामने करेंगे इंटरव्यू जो है, देखते हैं कितना होता है, कितना बोलते हैं। क्या बात है। थैंक यू। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कभी कभी करना होगा, विजुअल यार डिसाइड करेगी वो लगा के। अलग है वो उधर मेरा हाथ हिल रहे ये खाली मसर है। अरे ये बस, अरे दादा बैठो, अरे बस खाली सामने है ना, सामने कोई नहीं है, ये बैठ गए भाऊ वो ना घेते रात मध्ये। ए भाई बस, अरे वाकून जा रे, अभी जे समोर जे पण जातं वाकून जा। ये वाकून जा रे, वाकून जा सगळं नीट। ये समोर वाका रे खाली। Well, thank you so much, ladies and gentlemen, for being so wonderful. लाल 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 वाकून जा सगळे वाकून। बोला मैंने झुक के सारा बोलो। नहीं निकल रहा मेरा, निकाला नहीं हुआ है वायर नहीं निकल रहा था। नाम धीरे धीरे कौन सा है? लाल 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 बटन दबा के गाँव से है सर मेरा ऑडियो। हाँ वाकून जा रे बाबा, सगळे वाकून जा। मोबाइल कैमरा अच्छा जूम पे जाओ, गाँव से आ जाए कोई बीच में पैक करके बाहर लेके आओ, काट से ड्राईफ्रूट वहाँ का फोटो गलास कद्दू अरे हटना ये लट्टू। अरे अरे नीचे 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 नीचे। Aina, are you there? Yeah, meeting. दोनों नहीं बस आ जाए भाई सर बहुत खुश है।
कितने जगह हुआ पे जब तक पहुँचो जब तक ले कुछ लोगे तो ट्रैफिक ट्रेन से मारो सीधा बंद निकालो सब बंद करो। अरे दिल्ली वाला को फोन करो काट उठा ही नहीं रहा है। छोड़ दो अरे तुम बंद करो ना आउटपुट निकालो दिल्ली वाले को निकी को छाड़ निकी अजय भाई भेजना कैमरा ला वो लाए ना क्या ट्रैपर कैमरा बस लाइव मैं है ना इधर ही है आवाज आ रही है ट्रैपर दे दो हमको इधर